we continue with where we left off last time. So we are talking about organizational psychology. हमने बात की थी about how recruitment का process कैसे होता है. How do we socialize in an environment? जो work environment है, how do we get to um, become, adjusted with the environment? And then हम leadership की बात कर रहे थे, and we spoke about um, transformational leadership, and we discussed that transformational leadership cannot is something that is very charismatic, and people become sort of blind followers, and as a result, the leaders might make the people do several things which they might not otherwise, and so it can have its negative consequences as well. Even though the leadership in itself is remarkable, but with something so strong and so influential, आप उसका इसको exploit भी कर सकते हैं, and that is what has happened in the past as well, as we had some examples too. Okay. Now, charismatic leaders की जब हम बात करते हैं, तो we also have types in that. Okay, कि दो तरह के हो सकते हैं. First are the socialized leaders. Socialized leaders वो हैं जिनका जो कहेंगे purpose है, that is projected onto the people. The purpose is to मतलब to have um, people do good. So they want to do things that will empower others. ये socialized leaders हैं. Personalized leaders are those who are more self-interested, जिनका मकसद ज़्यादा selfish होता है, who want, for example, power हो सकता है. You're going to hear disturbances because I am at a position जहाँ पे road traffic आपको ज़्यादा सुनाई देगा, so sorry for that. ठीक है, so personalized leaders are those who are more selfish, and जिनके जो motivations हैं, they are mostly power हो सकता है, money हो सकता है, but something that relates to themselves. So even if they are a leader and they have a following, they're not really trying to do to benefit the followers. मतलब उनका मकसद ये नहीं होता. हाँ, हो सकता है बहुत सारी चीजों में जहाँ उनका अपना फायदा है, वहां पर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचे, लेकिन that is not what they're aiming for. So if something is going to happen to their followers, या उनको कोई नुकसान भी उठाना पड़े, तो their focus is mostly on themselves कि बस हम बच जाएं किसी तरह से. ठीक है, so these are personalized, so they're both, ये हैं दोनों transformational leaders ही हैं, charismatic leaders ही हैं, कि they will have a following, लेकिन मकसद यहाँ पर इसीलिए चेंज हो जाता है कि one would be social, जिनका इंटरेस्ट है, एक का इंटरेस्ट पर्सनल है. तो जो socialized leaders हैं, जाहिर है they would be much better for the society, because they would be doing things to empower others. But personalized leaders are always going to do things अपने लिए, and उससे फिर सोसाइटी को नुकसान भी हो सकता है. एंड हम अगर उनकी भी बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की, बिकॉज हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पर्सनलाइज्ड लीडर्स वुड बी दोज बॉसेस who would throw their employees under the bus. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनके ऊपर सारी चीज डाल सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या इस तरह की कोई और चीज भी वहां हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जॉब सेटिस्फैक्शन. अब इस पे बात करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी कि imagine, मतलब I'm sure you must have all imagined, एक तो interned, probably आपने कहीं कहीं internship की होगी, maybe even if not, you must have this concept कि अगर कहीं job करनी है तो फिर what kind of place would you like to work in. So I want you to take a couple of minutes and think about it, and then let's discuss it. What do you think is a job that is ideal for you? आपके ख्याल में क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस जॉब की, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी इन योर आइडियल जॉब, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जो कुछ भी आप जॉब नेचर से लेकर एक एक डिटेल की तरफ जाएंगे, और मुझे बताइए कि व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच वुड मेक यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ ये अच्छी जॉब मिल गई. क्या फैक्टर्स होंगे जिसको आप पहले से देखेंगे. Not a desk job, okay, then what kind of job?
Like, what would you consider a perfect job? रिसर्च लैब्स वर्किंग विद माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके। ये तो आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन हो गई। किस तरह की जॉब आप एक्सेप्ट करेंगी? A job that makes me happy, ठीक है रमशा, what would make you happy? What kind of job would make you happy? या इसको इस तरह से भी देख लें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कैसी जॉब होगी जो आप, या कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से शायद आप जॉब रिजेक्ट कर दें या आप जॉब छोड़ दें. Then I get to actively think, create and apply. Okay. ठीक है, so answer this one for me. कि what factors would lead you to maybe quit a job? खासतौर पे अगर आप में से किसी ने इंटर्नशिप्स की हैं पहले, so उस एक्सपीरियंस को रख के बताइए मुझे. I have left 3 jobs up till now. Acha, would you like to give the reasons? If the reasons are the same कि it's boring, तो फिर तो हम मतलब that's fine. लेकिन if there's any other reason other than that, you can also discuss that. Work hours, okay. Simran, work hours किस तरह के? मतलब what would be your ideal work hours for you? Freedom to express ideas and have them listened. Okay. बस अगर किसी ने दूसरों का काम मुझे दिया ना तो फिर मैं जॉब छोड़ दूंगी। Also साथ साथ मुझे बताइए what would be your deal breakers, जिसके बाद आप बिल्कुल सोचेंगे कि नहीं अब हम ये जॉब नहीं कर सकते या वी विल थिंक अबाउट चेंजिंग. अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी इफेक्ट हुई हुई बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से यू शुड क्विट। They were not interested, innovation or worker friendly, had to leave. More politics than I thought. Okay. अच्छा, ये पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा मुझे बताइए. What kind of मैम what जैसे kind of politics? मैं काम करूं और क्रेडिट कोई और ले जाए मतलब इधर जूनियर्स वर्क बट द बॉस जो है वो सारा क्रेडिट ले जाए और आपका कहीं नाम नहीं आए तो मैं वैसी जॉब छोड़ दूं। ओके, ठीक है. और उसका रीजन क्या होगा फातिमा? जो मतलब क्रेडिट क्यों जरूरी है? Wouldn't the job itself make you happy? कज मैम कभी कभी जो सीनियर वर्कर्स होते हैं उनके उनके पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन इतने आइडियाज नहीं होते तो जो जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बट दे हैव न्यू आइडियाज तो कभी कभी उनके आइडियाज सीनियर्स ले लेते हैं तो फिर अगर उनके आइडियाज को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हाउ कैन मतलब वो जूनियर्स जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे जब उनको वो अपनी मतलब दात नहीं मिलेगी अपनी अपनी आइडियाज के बारे में और उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इट इट वुड मतलब आपको ये फीलिंग आएगी कि अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मेरे पास ग्रोथ का या आगे बढ़ने का भी इस जॉब में कोई चांस नहीं होगा. जी जी मैम क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि मैं वहाँ कोई काम नहीं कर रही हूँ लाइक ओके, ठीक है. अच्छा, जहाँ रिस्पेक्ट ना हो या काम ऐसा हो जिससे कुछ सीखने को ना मिल रहा हो, सेम चीज रेपिटेशन में आए, आई अवॉइड पॉलिटिक्स, जैसे मेरे पीछे बातें. ठीक है, ओके. So you're also interested in respect. अच्छा, most of the time it is due to the dynamics of the organizations and how they treat everyone equal. How they treat everyone equal, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अप्रिसिएशन हो तो आप कह रही हैं एज अ रिवॉर्ड, तो मतलब ये रिवॉर्ड मॉनेटरी सेंस में हो सकता है, अ, जैसे सैलरीज, बोनसेस, इस तरह की चीजें, या इवन आपके ख्याल में वर्बल अप्रिसिएशन वुड आल्सो बी एनफ? If someone else gets to take the credit of my work, I'll quit because I think hard work should be appreciated. Okay, appreciation, ठीक है. Okay, so this one aspect seems to be very important, where co-workers attitude is inappropriate to me. ठीक है. सो जितने अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स आप लोगों ने दी, इसमें वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं. तो हाउ यू आर बीइंग ट्रीटेड एट वर्क, मतलब इट इज ऑल पीपल रिलेटेड.
कि आपके कोवर्कर्स आपके साथ कैसे हैं, आपका बॉस आपके साथ कैसा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है या नहीं मिल रही, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, वो हो रही है या नहीं हो रही। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स अपेरेंटली फॉर ऑल ऑफ यू। इससे हट के अगर हम लोगों से हट के और जॉब के हवाले से बात करें तो मुझे बताइए और क्या क्या चीजें हैं जॉब की जो आपकी जो किसी भी जॉब को अट्रैक्टिव बना सकती है आपके लिए, अदर देन द एनवायरनमेंट या वर्क प्लेस जो डायनामिक्स हैं उससे हटके। I think individuals are not equal. There can be a difference in how same work is conducted by individuals with similar traits. Okay, I'm a little confused on the point that made you dissatisfied. कि if they're all treated equally, इसका मतलब ये कि even if somebody is doing better, फिर भी उसको बाकियों की तरह ही treat किया जा रहा है. Is that what you're trying to say? Okay, ठीक है. मैम एक और एस्पेक्ट जो जॉब को मतलब अट्रैक्टिव बनाता है वो ये है कि मैं रिसेंटली 2 जगह इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रही थी। तो एक जगह मेरे घर के बहुत करीब थी और एक मेरे घर हम्म, से काफी दूर थी। तो मैं हम्म, बार बार ये सोच रही थी कि मुझे किधर जाना चाहिए, बिकॉज हर फैक्टर को सोच के तो आई थिंक सो कि जो डिस्टेंस होता है आपकी वर्क प्लेस और आपका होम का, वो भी एक आपको एक जॉब आपकी अट्रैक्टिव बनाता है। बिकॉज समटाइम्स okay. आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए आप सोचते हो कि आप दूर चले जाओ, बट व्हेन यू प्रैक्टिकली ट्रेवल फ्रॉम योर हाउस टू देयर, आप एकदम आप एक पॉइंट पे आके बहुत सफोकेट हो जाते हो कि ये मैंने क्यों जॉब ले ली। हम्म, एंड हम्म. योर फैमिली हाँ, ऑल्सो सेज, बिकॉज ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज माई फादर यूज टू वर्क रियली फार फ्रॉम आवर हाउस, तो ही हैज टू ट्रेवल लाइक 2 hours, एंड फिर वो आते थे तो लाइक वर्क इन आपका घर का भी पूरा मतलब सुख चैन पूरा वो हो जाता है आपका डिस्टर्ब, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। तो डिस्टेंस आई थिंक सो आप जॉब को और अट्रैक्टिव बनाता है अगर आपका करीब हो। ठीक है, दैट्स ट्रू। मतलब अगर आपको ऑप्शन मिले दो जगहों का जिसमें हर चीज सेम हो एक्सेप्ट फॉर वेदर इट इज क्लोज टू योर प्लेस और नॉट, तो फिर यू आर मोर इंक्लाइन टू पिक अ प्लेस दैट इज क्लोज टू। यानी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हर चीज अगर दोनों जगहों की बिल्कुल सेम हो और सिर्फ ये, क्योंकि और फैक्टर्स हो सकते हैं जो शायद आपको और अट्रैक्ट करे, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है गुड सैलरी। तो अगर फॉर इंस्टेंस आप फातिमा की एग्जाम्पल को अगर मैं ले लेती हूँ कि इंटर्नशिप की जगह अगर जॉब होती और दो जगह होती, एक जगह लेकिन आपको सैलरी जो है वो 60-70 थाउजेंड ऑफर हो रही है, दूसरी जगह आपको 40-50 थाउजेंड ऑफर हो रही है, तो मे बी घर से दूर अगर हाई सैलरी है तो यू वुड स्टिल मे बी ग्रेविटेट मोर टूवर्ड्स दैट कि चलो थोड़ा सा डिस्टेंस और है, बट एंड अगेन जरूरी नहीं, इवन इफ द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इवेंचुअली यू माइट डिसाइड टू क्विट। हो सकता है कि आप जॉब एक्सेप्ट कर लें कि चलो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे बिकॉज और चीजें यहाँ पर हैं और बेनिफिट्स हैं, बट लेटर ऑन मे बी विद टाइम you might, if that starts affecting your life, so you might start looking for other options. Acha, you have to be in league, you need to be kneeling for them and do as they say. They want you to work but not demand anything in return, nor will your complaints be entertained. Money is coming, all is good, but then these organizations go bankrupt and they make only investors happy, not the people that work, not the fund within organization. ठीक है, ओके। तो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर होता है कि यू हैव टू जस्ट यू नो जी हुजूरी करनी होती है, उनकी हर बात में आपको हाँ में हाँ मिलानी होती है। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अपीलिंग टू यू। रेप्यूटेशन ऑफ द प्लेस, जो आपने कहा रेप्यूटेशन, ऑल राइट, वो भी बिल्कुल मैटर करती है, बिकॉज आप जब किसी को बता रहे होते हैं कि हम इस जगह पे काम करते हैं तो यू फील मोर प्राइड इफ इट इज अ प्लेस दैट इज वेल रिप्यूटेड, बिकॉज उसका फिर चांसेस ये होते हैं कि उन सुनने वाले को भी पता होता है कि दिस इज ये मतलब इस जगह का उनको पता होता है कि ये अच्छी जगह है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली आपका दिल चाह रहा होता है, किसी जगह की अगर रेपुटेशन होती है तो उनकी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी होती है। हाँ, गुड सैलरी पे भी हम बात कर चुके हैं। सेकेंडली, दे मेक कल्ट्स, स्टॉप मेकिंग कल्ट्स, वी ऑलरेडी हैव टू मेनी कल्ट्स, लेट इंडिविजुअल्स बी। ठीक है, अच्छा, दिस इज आई थिंक अ लिटिल अगेन अ लिटिल एक्सट्रीम, शायद स्पेसिफिक जॉब नेचर, हर नेचर की जॉब में पॉसिबल नहीं है इस तरह से कल्ट हो जाना या इस तरह का कुछ कर लेना, बट येस इन सम प्लेसेस आई थिंक मोर मोर जहाँ पर आपकी सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा हो या जहाँ आपकी जॉब के नेचर में ही सोशलाइजेशन हो, वहाँ पर देयर इज़ अ हायर चांस किस तरह की चीज़ें हो।
आइसोलेटेड जॉब्स जहाँ होती हैं, जहाँ लाइक वेयर यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर ओन, वहाँ देयर इज अ लेसर चांस ऑफ थिंग्स लाइक दिस. सैलरी डेफिनेटली मेक्स अ बिग चेंज. दो कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं भी है तो पीपल ट्राई टू एडजस्ट. यस, यस, सैलरी इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स. So imagine somebody like if again अपने आप को रख के देखें कि if you're offered a job और वो आपको सैलरी 1 लाख दे रहे हैं per month, you would be willing to put up with a lot of things कि चलो ये भी बर्दाश्त कर लेंगे, बिकॉज वहां क्या हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ देर इज अ कॉन्स्टेंट मोटिवेटर एवरी मंथ. पूरा महीना आप सोच रहे हैं जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, ये नहीं है, कहीं और अप्लाई कर दें, बट देन एंड ऑफ द मंथ यू गेट दैट मोटिवेटर जो आपको बहुत ज्यादा वो कर रहा है. ठीक है, तो इट रियली डज. एंड बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, बिल्कुल खुश नहीं होते, बट देर ओनली डूइंग इट फॉर द मनी. लेकिन अगेन वही बात है कि देन यू आर नॉट रियली हैप्पी इन दैट जॉब, बट इट्स जस्ट लाइक कि चलो कुछ तो मिल रहा है इसके बदले में. Generally, when I start working, I would like to learn the business, not just my tasks, and which is a lot to ask. Okay. Actually, a lot of people appreciate that, but they want you to focus on your tasks more because they feel like आप distract ना हो जाएं. And also some people feel threatened when newer people, if they want to learn more or if they're more enthusiastic about learning everything, तो वो threatened feel करते हैं कि ये करना क्या चाह रहा है. Some people do feel that. अच्छा, फातिमा क्या कह रही है, यू थिंक कि ज्यादा सैलरी तो फ्यूल में चली जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद सिमिलर सैलरी. हाँ, दैट डिपेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि अगर इफ इट इज इतना ही सैलरी में इतना ही फर्क है कि जो आपके फ्यूल में खर्च हो जाए, तो फिर वही बात है कि आपका जो टेक अवे है वो फिर बराबर हो गया. लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर यू क्लियरली नो कि एक जगह की सैलरी दूसरी जगह से डेफिनेटली हाई है. इवन अगर आप फ्यूल माइनस कर दें, सब कुछ हटा भी दें, तो भी यू वुड बी अर्निंग मोर इन अ स्पेसिफिक प्लेस. बट अगेन इंडिविजुअल लोगों की डिफरेंट मोटिवेशन हो सकती हैं. सो इट कम्प्लीटली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट समथिंग जिसमें हम कोई पॉइंटर्स लिखते हैं कि हाँ दिस विल मेक यू सेटिस्फाइड एंड दिस वोंट. सबके मोटिवेटर्स डिफरेंट होते हैं. फॉर अ फैमिली हु इज स्ट्रगलिंग, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए सैलरी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. उनके लिए इवन अ क्रैपी जॉब दे वुड कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज उनको सैलरी मिल रही है. ठीक है, बट फॉर हाँ, समबडी हु डजंट नीड दैट, वो शायद छोड़ दें जॉब. उनको फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है पैसे की, आई वांट द एक्सपीरियंस, तो वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है उनका. मिस पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जॉब में जो चीज पसंद करते हैं ना, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर मतलब नेवी में जॉब करते थे, तो वहां पे उनको सैलरी इतनी नहीं मिलती थी, बट दे यूज टू गेट अ हाउस, कुक मिल हम्म. जाता था, पेट्रोल का हम्म. उनका वो होता था, तो वो काफी उन्हें अरसे वहां जॉब करी. तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोग सैलरी से ज्यादा इनको कंसिडर करते हैं कि यू आर गेटिंग अ कुक, हम्म. आपको घर मिल रहा है. तो ये हम्म. भी फैक्टर्स लोग ज्यादा कंसिडर करते हैं. आई थिंक सो यहाँ हमारी सोसाइटी में तो ज्यादा कंसिडर करते हैं. हाँ, जॉब के इंसेंटिव्स हैं और मिल रहे हैं. इसलिए आप देखें कि बहुत सारे सैलरीज के अंदर या जॉब्स के अंदर वो आपको बताता है ना कि आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं. जो जॉब बेनिफिट्स के नाम से आप उसको सर्च करते हैं कि अच्छा यहाँ पर जो है आपको, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो मेडिकल आपका कवर्ड है. या बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर वो आपको इंश्योरेंस दे देते हैं फॉर लाइक मेडिकल, वो आपका कवर कर लेंगे, या पेरेंट्स का मेडिकल वो दे देंगे. इस तरह से कुछ पैकेजेस कहीं कहीं पर होते हैं एंड दे आर द जॉब बेनिफिट्स. तो वो भी डेफिनेटली अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं. एंड स्पेशली अगर घर मिल रहा हो, गाड़ी मिल रही हो, या इस तरह के और प्रिविलेजेस मिल रहे हो, दैट इज ऑल्सो लाइक आपके बर्डन को बहुत हद तक कम कर रहा है. तो it becomes very attractive. अच्छा, good job क्या है? There the employer treats you like a normal human being and takes into account your concerns even if they can't solve the issue, but lets you know why they can't. If the employer is keeping me informed and letting me know why things are as they are, that's super important to me. Communication with comprehension is all that matters. अच्छा, unfortunately Sumaira, this is a very 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 idealistic situation. बहुत ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे नहीं होते, लेकिन they are बहुत जगह पर जो है ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस अनफॉर्चुनेटली. हमारा खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, या जो प्रोफेशनल जेलसी होती है, या जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसकी वजह से एवरी टाइम दिस इज समथिंग दैट गेट्स अफेक्टेड. सो मे बी योर इमीडिएट बॉस, जैसे अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ मे बी यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. बट द हायर अप यू गो,
the more disruptive this relationship is going to be. तो मेरा अपने डायरेक्ट इमीडिएट बॉस के साथ हो सकता है कि अच्छे डायनामिक्स हो जाएं. Again, that is also not something which we should take for granted. बहुत जगहों पर people they have to go through experiences where they're working with a very difficult boss, with a difficult person who's not cooperating, who's demanding और unjustly treat करता है, bully करता है. It's very common. ठीक है, but sometimes you might find people who are, लेकिन the higher the difference between you and the authority, जितना ज्यादा गैप होता रहेगा उतना डिफिकल्ट है टू अचीव दिस गोल कि वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करे, आपकी हर कंसर्न को सुने और उसको, क्योंकि आप देखेंगे इमीडिएट बॉस शायद सुन ले, लेकिन अगर आप सीईओ को कोई लेटर लिखेंगे तो मे बी वो एक्नॉलेज भी नहीं करेगा उस चीज को. तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन द कंपनी एज वेल, एंड अगेन द माइंडसेट ऑफ द वो. लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि if you want these things, then you will have to maybe, like, tone it down a little bit if you do want to get a work experience, because बहुत negative experiences होते हैं once you enter the professional world. uh, and again, not discouraging anyone, but we should all be ready for the kind of environment that we might have, especially when you're starting off as a new person, as a fresh graduate. आपको जो है वो सारी चीजें वैसे नहीं मिलती जैसे आप चाह रहे हो, तो you have to be in the field for a certain period of time to at least get the respect that you should, even when you're starting off. But you will have to go through, everybody has their own journey and you will have to go through it. अच्छा, getting salary on time, and if I'm a minute late, at least मेरी salary ट्रक ना हो, ठीक है. ओके, तो ये जो एक कुछ लोग वो करते हैं, प्रेफर करते हैं कि थोड़ी सी फ्रीडम हो, इतना इतना ज्यादा जेल जैसा एनवायरनमेंट ना हो. So I hate working in places where the rooms are filled with just men. If I wanted that, I would have joined the army. Okay. ठीक है, so a diverse work group as well. All right, so we have a lot of points. Let's just take a look at general जो चीजें हैं क्या क्या हैं. ठीक है, एक तो मतलब हम ये देखते हैं कि लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद दिस. ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन को दो तरह से वो किया जा सकता है, असेस, लाइक दिस इज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग. तो द फर्स्ट वुड बी लाइक एक जनरल एक एक्सपीरियंस आपका कि हाउ सेटिस्फाइड, जैसे क्वेश्चन है कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर जॉब, तो इसमें आपकी ओवरऑल एक चीज आ जाती है कि मतलब आपको कैसा लग रहा है, डू यू लाइक वर्किंग और नॉट. दूसरी अप्रोच ये जहां पर आप अपनी जॉब को कैटेगराइज करते हैं इनटू मेनी, यू कुड से लाइक पार्ट्स, और उसके हर एस्पेक्ट को आप एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी कैसी है, फिजिकली जो है डिस्टेंस किस तरह का है, हाउ कंफर्टेबल आर यू गोइंग टू वर्क, हाउ सेफ डू यू फील, एंड ऑल ऑफ दैट. तो डिफरेंट इस तरह के एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली असेस किया जाता है और फिर ओवरऑल एक कॉम्पोजिट मेजर निकाला जाता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट असेसिंग इट लाइक ऑन अ मोर क्वांटिफाइबल मैनर, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन को असेस करना थ्रू असेसमेंट टूल्स, थ्रू क्वेश्चनर्स, थ्रू सर्वेज, ये भी काम होता है. ठीक है, तो वो उसकी भी यहाँ पर बात होगी कि उसको किस तरह से किया जा सकता है. What makes a job satisfying? We've discussed in length. Generally, इन्होंने हैकमैन और ओल्डम इन्होंने 5 characteristics दी हैं about what contributes to job satisfaction. ठीक है, पहला हमने कहा task identity, ये the extent to which the job represents a whole piece of work, कि आप जो काम कर रहे हो वो काम उस ओवरऑल जॉब में कितना, ओवरऑल जॉब के लिहाज से उस काम की क्या अहमियत है. ठीक है, सो टास्क आइडेंटिटी, लाइक डज योर टास्क और डज योर जॉब कंट्रीब्यूट वाइडली टू द वर्क, क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है. एग्जांपल जैसे यहाँ दी हुई है, रनिंग अ रेस्टोरेंट और वॉशिंग द डिशेस. तो एक रेस्टोरेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आपका आपका हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ सिग्निफिकेंट इज योर टास्क एज टू द जॉब. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वहां पर आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है तो आपको पता है कि यू नो यू कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली विद द
environment जो जॉब का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं. बट देन ऑन दी अदर हैंड आप अगर सिक्योरिटी गार्ड हैं या आपकी कोई इस तरह की जॉब, जैसे उनकी जो जॉब्स होती हैं ऑफ आप चाय वगैरह दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, आप केटरिंग, अगर फॉर एग्जांपल इवन अगर आप केटरिंग कर रहे हैं या किचन में आपका काम है, तो दैट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द नेचर ऑफ द वर्क. मतलब ये वाला काम आप कहीं और भी किसी भी इदारे में कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, और आपकी जगह कोई और भी इस काम को करे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो टास्क आइडेंटिटी होती है, वो भी आपकी जॉब को सेटिस्फैक्ट्री उस पर बना देती है. दूसरा सिग्निफिकेंस. ठीक है, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द सोसाइटी इन जनरल. आपका काम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, की मेरी कितनी जरूरत है इनको. वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. ठीक है, ऑटोनॉमी, जैसे आप से कुछ ने कहा कि एक वो दिया जाए, फ्रीडम दी जाए कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कोई आइडियाज जनरेट कर सकें, आप सोच सकें आप अपना काम खुद से कैसे करना चाहते हैं. सो autonomy also involve is important when it comes to job satisfaction. Feedback. ठीक है, receiving information about job performance is also important according to them. And they say कि feedback जरूरी नहीं कि positive feedback हो, it could be negative as well, लेकिन feedback होना चाहिए, because when you get feedback you know that your work is being evaluated. तो आपको पता है कि अच्छा जो मैंने काम किया, जैसे अब ये किस तरह से फीडबैक यूजुअली होता है एम्प्लॉयज के साथ, कि दे हैव एक एनुअल उनकी इवैल्यूएशन होती है. तो आपके जो बॉस हैं वो आप एक फॉर्म आता है, मतलब मोस्टली जैसे उसकी बेसिस पे प्रमोशंस डिसाइड होते हैं. तो अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो दिस फॉर्मेट, जहाँ पर आपकी ईयरली जो है वो एनुअल इवैल्यूएशन होती है, जहाँ डिफरेंट सब हेड्स होते हैं, बहुत सारे और कैटेगरीज होती हैं, हर जगह आपको असेस किया जाता है. तो दैट इज फीडबैक अबाउट योर जॉब परफॉर्मेंस. एंड दिस is very important because you feel like हाँ everything that I do, even पूरे साल में मैं जो जो काम करूँ, I know that it is going to be acknowledged and that is important. एंड लास्टली वैरायटी. ठीक है, कि एक ही तरह का टास्क नहीं हो. देयर शुड बी लाइक वैरायटी इन योर जॉब in order for you to be satisfied by it or enjoy doing it. क्योंकि एक वक्त पे आके even if you're doing one thing that you're interested in, after a while it becomes very very monotonous, क्योंकि आप वही वाला काम उसी तरह से किए जा रहे हैं, सालों हो गए हैं, बट वही काम आपका है. अगर आपको कोई शीट्स बनानी है, अगर आपको कोई अगेन अगर हम अकाउंटिंग की एग्जांपल लें, कि वही सारे आपको चार्ट्स बनाने होंगे, उसी तरह के फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, तो दैट बिकम्स अ लिटिल मोनोटोनस. So a lot of people also shift their jobs because they want a variety. वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं अपने काम से. ठीक है, सो मूविंग ऑन. ओके, वर्क प्लेस स्ट्रेस. ठीक है, अब इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. मुझे बताइए, what do you think are the factors that would cause stress at work? जो चीजें आपने ऑलरेडी बताई हैं वो तो है ही, बट लेकिन उसके अलावा भी अब आप जॉब कर रहे हैं, टू मच वर्क, ओके, टास्क बियॉन्ड नॉलेज, ऑल राइट, मतलब आपसे ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, टू लेस वर्क, ओके. अच्छा, हाउ डज दैट वर्क, ये मुझे बताइए जरा, हाउ हाउ डज टू लेस वर्क कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस? ओके, ठीक है. So you were hired as an intern and they gave you nothing to do. Why was it stressful for you then? Wasn't it like a relaxed environment? कुछ करना भी नहीं है, काम भी हो रहा है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा. इंटर्नशिप में काम नहीं मिलता. हाँ, तो ये मुझे बताइए कि काम ना मिलना क्यों आपके लिए वो है. What's the point? Why do you think it's like? Do you think there would be people who would enjoy not doing anything? कि आए और बस बैठे, पैसे भी मिलते रहेंगे, कुछ करना भी नहीं है, बेस्ट जॉब हो गई ये तो. सुनने में तो बड़ा आइडियल लग रहा है. डिसऑर्गेनाइजेशन, हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, डिसऑर्गेनाइजेशन किस तरह से?
Miscommunication between manager and team lead can lead to stressful situations. Okay, miscommunication है. Miscommunication यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि is it like a deliberate miscommunication कि वो आपको clearly बताए नहीं या फिर maybe they're just not like उनका nature नहीं है बताना. And why does it become stressful? Okay, if I'm putting in the effort to wake up and come here, then I need work, or else I can go and chill at a park or at a movie if I want to not at work. ठीक है. ठीक है. So this point, ये जो less work होना, a lot of people feel कि ये काम नहीं करना तो बहुत अच्छी जॉब हो गई ना कि खासतौर पे हम जॉब की बात करें. जाहिर है internship you're not getting anything in return. आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे. Some internships like big companies they would offer money to the interns, but जहाँ पर your sole purpose of joining an organization is to learn. वहाँ पे if you don't get to learn, जाहिर है it's going to create dissatisfaction. But sometimes some people they believe कि a job that is going to give you a monthly salary, अगर बगैर कुछ किए आपको सैलरी मिल रही है तो फिर तो बहुत अच्छी जॉब है. A lot of people think that, why you stressed about it, but they fail to realize that not having to do something might also be very like exhausting for a lot of people जो जो drive रखते हैं to work, who want to learn, who want to grow, who want to be creative, who want to do something. So it cannot be generalized कि हाँ अगर कुछ नहीं करना, कुछ ना करने के पैसे मिलना sounds very ideal and it could be an ideal job. It's mostly not. And there are people who even quit their jobs just because it's not challenging enough, because it doesn't stimulate them, it doesn't stimulate their intellect or their creativity, and they want that. अच्छा, इंट्रोवर्टेड. मरियम, इंट्रोवर्टेड को भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो कि इंट्रोवर्टेड से आपका क्या मतलब है. हाउ इज दैट गोइंग टू कॉज स्ट्रेस फॉर यू? अच्छा, लाइक मी बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड. So, you being disorganized would be stressful, would be a work stress, or would that be a general stress? मतलब अगर आप disorganized हैं तो फिर तो आपको हर चीज में स्ट्रेस होगा, राइट? तो वर्क में डिसऑर्गेनाइज होने से स्ट्रेस तो आपका अपना मतलब उसके अंदर एक रोल है, तो दैट वुड बी मोर जनरलाइज्ड. If the boss is biased, okay, ठीक है. When the manager does not know how to convey the message properly and end up jeopardizing a project. All right, ठीक है. तो यहाँ पर it means कि you feel like the work that you put in is going to be compromised because the manager is inefficient. uh, शायद उतना competent नहीं है, उतना efficient नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी मेहनत जाया हो सकती है. So that could also be um, exhausting या stressful हो सकता है. काम नहीं करने का मतलब इज नो रूम फॉर ग्रोथ, वो स्टैग्नेंट ही रहेगा. यस. सो मतलब this is for a lot of people who want growth, this is a motivator, but there also are people who want to earn but don't want to work. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम देखते हैं, अगेन इफ यू जस्ट जनरली इफ यू सी, तो हम देखते हैं बहुत सारे हमें नजर आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं. I'm not saying everybody does that. There are people, I have seen people in government offices who are working बिल्कुल सब कुछ अपना वो करके out of the way जाके help कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. But there are also people who will come in late, जल्दी निकल जाते हैं. लंच ब्रेक 1 घंटा है तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, मतलब वो 1 घंटे का ब्रेक जो है वो 3 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है. बिकॉज सो व्हाट, ठीक है. तो अगर जुम्मा है, नमाज ब्रेक भी उनका जो है वो 1 घंटे से शिफ्ट हो जाता है. तो इट्स लाइक इफ तो वहां पर we see that these people are more comfortable not doing anything. For them, too much work or having accountability would become stressful. Just stress is working without getting paid, and when you have to spend all by yourself. It's helpful in long run when you work for free. It's also good because it makes you think of becoming or doing something of your own. Salary can be addictive, and some people don't want to work for others for the rest of their lives. Yes, this is also another point. अब देखिए कि आजकल हम startups बहुत सारा देखते हैं, entrepreneurship बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उसकी वजह यही है कि people are realizing number one that there is an opportunity. अब ज़्यादा easy हो गया है for people to startups, मतलब अपने startups को शुरू करना उनके लिए easier हो गया as compared to before, because entrepreneurship के बारे में इंफॉर्मेशन अब ज़्यादा अवेलेबल है, हमें पता है कि ये भी एक ऑप्शन है.
बट बहुत सारे लोग हैं जो जॉब नहीं कर पाते, कि हमें बस एक कॉन्स्टेंटली अपनी सारी जिंदगी किसी के अंडर रहते हुए अकाउंटेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन doing something for their benefit, it doesn't sit well with them. So most of the like I know some people who have worked for 3, 4, 5 years, पैसे उन्होंने जमा किए so that they can start their own business. कि we want to work for ourselves, किसी और के लिए नहीं. Being introverted होने से मैं बचा में भी she can't show his capabilities and put off work like okay and demotivated by others. Yes, ये बिल्कुल हो सकता है कि if you as a person are introverted, I think वो यही वाला point फिर रमशा ने जो कहा था disorganized होना, वहां पर भी यही है कि you won't be able to shine or show your potential. Misconception makes things more difficult, so understanding between boss and employee. Okay. अपने काम से काम नहीं रखना, very important. Some people I have met in professional life with such talents, and I generally get comfortable with them. Okay. Most Facebook shop where buying and selling will be made easier than before. Future looks opportunistic, easier to reach out. Achha, I have a close relative who sells biryani now, working as a banker for like 8 years. Yes, see, these are, and they'd be like much more satisfied, much more happier doing it. So all of these, again, we've covered a lot of points. Let's take a look at what could create stress. ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले तो हमारे पास फिजिकल स्ट्रेसर्स एंड वर्कलोड है. ठीक है, फिजिकल स्ट्रेसर्स की जैसे हम ये दिस इज लाइक द मोस्ट कॉमन वन कि फिजिकल स्ट्रेसर्स में हमने बात की कि वही बात की जैसे डिस्टेंस अगर आपके घर से बहुत दूर है, यू हैव टू ट्रैवल 2 hours टू गेट टू अ प्लेस, दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर फॉर यू एज वेल. इफ योर बिल्डिंग हैज लाइक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, फोन आपके नहीं चल रहे हैं, कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो देर कुड बी फिजिकल, जहाँ पे आपकी जो वो है फिजिकल और इमोशनली आप ड्रेन आउट हो जाते हो, हैविंग टू डील विद people who are incompetent or having to deal with bullies, communication का problem होना, all of these can contribute to workplace stress. ठीक है, and dangers in the work environment also can cause stress is another point. ये specific jobs related है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की है, नर्सेस की है. आजकल फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, they are their job is the most stressful right now because they're dealing with COVID patients. So generally सब लोग stressful हैं, but obviously they are like in the line. So this could also be an added stress factor. अगर आपकी specific job nature आपका ऐसा है which involves life threatening situations physically as well as emotionally. ठीक है एंड जैसे मैंने हमने बात की वर्कलोड तो हो सकता है, बट वर्क अंडरलोड भी स्ट्रेसर हो सकता है. ठीक है, एंड देन अगेन योर रोल एट द वर्क प्लेस, इफ देयर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, का मतलब ये है कि एक आपका रोल तो ये है, आप मैनेजर हो एक जगह के, लेकिन आपसे काम जो है वो और तरह के भी ठीक करवाए जा रहे हैं. तो देर इज अ रोल कॉन्फ्लिक्ट कि लुक माई वर्क इज टू मैनेज एवरीथिंग, इज टू सुपरवाइज एवरीथिंग, लेकिन मुझसे फिर अगर आप इस तरह के और काम करवाएं जो मेरी रोल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या it clashes with my role, then that is going to create role conflict, and that can also lead to workplace stress. Similarly, role ambiguity is very very important कि आपको अगर ये पता ही ना हो कि मुझे काम क्या करना है, आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, आपको कैसे डिलीवर करना है. आपसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि आपको जो है एक रिपोर्ट बना के देनी है, बट यू नॉट टोल्ड अबाउट हाउ टू मेक द रिपोर्ट, व्हाट टू डू इन इट, आप किस तरह से उस रिपोर्ट को असेस करोगे, कहाँ भेजोगे, ये सारी चीजें जो है रोल एम्बिग्विटी में शामिल होती हैं, एंड दैट कैन आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. इसीलिए okay, speaking of stressors, I didn't have time to eat or relax in between school and work, and I was exhausted 8 a.m. to 10:30 p.m. Sometimes to get home, I still don't know why I did that. My family super against. I just hope experience was worth it. Yes, you know, हम जब इस एज में होते हैं, खासतौर पे यूनिवर्सिटी गोइंग एज में, जहाँ पर
बिकॉज इन स्कूल कॉलेज देयर इज वेरी लिमिटेड इंडिपेंडेंस, आपको कहीं इस तरह से जाने की फ्रीडम नहीं होती। यूनिवर्सिटी आने के बाद अ लॉट ऑफ डायनामिक्स चेंज एट होम, आप पे पेरेंट्स थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ चलें ये ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, प्रोफेशनल होंगे। So, and there is also, because of our age, there's a lot of enthusiasm of doing things. आप प्रोफेशनल फील्ड को देख रहे हो, आप चाहते हो कि आप कुछ करें, but it is always seen कि when you do too much, it doesn't matter how enthusiastic you are, it starts affecting your generally जो आपकी mental health है, आपकी जो physical health है, वो दोनों को affect करना शुरू करती है। it doesn't mean that you shouldn't do it. It doesn't mean that ये आपके लिए नुकसानदेह है, और उसका definitely फायदा होता है, especially if you are learning something, it does give you benefit. But my advice to all of you would be कि don't put yourself, yeah, when you realize कि this is becoming too emotionally challenging or physically challenging, then take a break. ठीक है, ऑलवेज टेक ब्रेक, गिव योरसेल्फ सम टाइम। एक प्रोजेक्ट अगर खत्म हो रहा है देन इंस्टेंटली डोंट जंप ऑन अनदर प्रोजेक्ट, कुछ कुछ टाइम तक ब्रेक ले लें, कुछ टाइम तक रिलैक्स रहें। आपने रेगुलरली 1 महीना 2 महीना काम किया है, देन टेक 1 वीक और टू, एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें एंड देन स्टार्ट कंटिन्यूइंग अगेन, एंड 1 2 मंथ ऑफ विगरस वर्क इज अ लॉट। तो इवन इफ यू डूइंग लाइक आपकी काम अगर ऐसा है कि आप रोजाना की रूटीन जैसे आप बता रहे हो कि सुबह से लेकर रात तक आपका है, तो वीकेंड्स आप जो है उसमें फिर अपने आप को बिल्कुल ब्रेक दें। दिस इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ वर्क एंड दैट एंथुजियाज्म, देन यू हैव टू गिव योरसेल्फ ब्रेक, बिकॉज दैट विल कीप द बैलेंस। तो फिर आप और ज्यादा कर सकोगे, और जो कुछ भी कर रहे होगे उसमें आप लर्न बहुत ज्यादा करोगे और आउट परफॉर्म करोगे अपने आप। ठीक है, सो मूविंग ऑन। ठीक है, अदर स्ट्रेसर्स इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। अगेन देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, यू कैन जस्ट रीड ऑल ऑफ दिस कि किस किस तरह के उसमें हो सकते हैं स्ट्रेसर्स आपके। तो ऑल ऑफ दिस, द पॉइंट ऑफ दिस होल, खास तौर पे इसको हमने बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट एंगल से, एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल एंगल से देखा है। और इसका पर्पस ये है कि साइकोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है वो हर जगह हो सकती है। और हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वी जनरली टॉक अबाउट पीपल इन लाइक देयर डेली लाइफ, बट आप उसको अप्लाई कर सकते हो द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड थ्रू आउट, डिफरेंट चीजों को उनको आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए उसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट विल give you more information about people as well, about human behavior. I once had the opportunity to work at a looming factory where they convert yarn into cloth. Blessed with a great imagination, I was able to close my eyes and imagine how a bunker would feel like during active action in a war. That is how loud the place was. It was 24 hours a day, 7 days a week. We had shifts. So, yes, uh, this is another physical factor. Okay, which would create a lot of problem. And इसी से I just remember कि जितने भी factories हैं, the ones that have like जहाँ पर radiations होती हैं, तो हमें पता है of all those people who eventually develop cancer। तो जो लोग न्यूक्लियर प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जो इस तरह की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पर रेडिएशन इन्वॉल्व है, तो दैट इज लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। अब मसला ये है कि बिकॉज दे वेरी मोस्टली ये जो वर्कर्स हैं देर लोअर क्लास से हैं, देर नॉट दैट एजुकेटेड, तो उनको इतना पता नहीं होता कि इसके इतने इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि आई कैन डेवलप मे बी कैंसर बिकॉज ऑफ इट सम टाइम इन माई लाइफ। और वहाँ पे इवन उस हमें जैसे पता है कि यहाँ पर जो भी हमारे प्लांट्स हैं कैनप में है, उसके आगे पीछे मतलब यूजुअली इन प्लांट्स को बहुत दूर आइसोलेटेड जगह पे बनाया ही इसलिए जाता है कि आबादी इफेक्ट ना हो, लेकिन वहां पर कच्ची आबादी जरूर होती है कहीं ना कहीं। एंड मोस्टली उन्हीं जगहों के जो लोग हैं दे वर्क एज एम्प्लॉय एज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो मजदूर जो भी हैं वो वहीं करीबी गांव से आ रहे होते हैं। दैट होल गांव, दैट होल जो कच्ची आबादी है, दे आर ऑल अफेक्टेड बाय द रेडिएशन एंड दे विल गेट अफेक्टेड लेटर ऑन। तो ऑल ऑफ दिस इज लाइक these threats, फिजिकल थ्रेट्स, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर तो आप शायद कंटिन्यूसली काम करते रहो।
लेकिन अगर आपको पता हो बट आप मजबूरी में काम कर रहे हो, दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्ट्रेसर कि यू नो दैट यू पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर। लाइक हमने जैसे बात की थ्रेट टू लाइफ हो सकता है, दे हैड नो सेफ्टी गियर एज वेल, आई वुड हैव टू राइट डाउन समथिंग देयर बिकॉज़ साउंड इज, so this is all मतलब again अब ज़ाहिर है that was the nature of the job, but it's not easy to work in places like this. हमें कभी भी मजदूरों को underestimate नहीं करना चाहिए. They go through a lot of hard work and they are paid the least amount for the amount of work that they do, for the hardship that they face. हम लोग एसी के ऑफिस में बैठ के अगर 25,000 की सैलरी ले लेते हैं minimum. These people they work in the heat. They have to carry heavy loads सुबह से लेके शाम तक physical exertion उनकी लगती है. And then at the end of the day उनको 100-200 रुपए मिल जाते हैं. And so monthly they're hardly making 5 to like 6-7 thousand or something like that. Maybe at most stretch करें तो 10,000 की job होगी and they'd be satisfied if we have a good job. Their work is a lot, the stress is a lot, but they don't get paid that much because that's how it is. Site industrial area, guys try to breathe the air there. You can feel the cancer in the air. It is obviously that is the whole thing कि जब हम देखते हैं कि industrialized एक जगह हो जाती है तो फिर ये सारे इश्यूज साथ में आते हैं. ठीक है, so um, we should try to understand people where they're coming from, especially if you want to work in an environment in future. You want to be professionals, then you have to be prepared to deal with every kind of stress, with every kind of environment, with every kind of person. क्योंकि लोग जो है वो भी आपको हर जगह हर तरह के मिलेंगे. वर्क प्लेस पॉलिटिक्स आपको हर जगह पे मिलेगी. इवन अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहां पर भी यू विल फेस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स. कहीं ना कोई इशू आपको जरूर होगा. जस्ट you'll have to take all of these experiences as learning experiences and use that to grow. Yeah, use that for your professional development because learning to deal with manipulation and hypocrisy is also part of becoming a professional. Is also part of becoming a good worker. Okay? And when you become bosses, when you inshallah reach in a place where you're managers and when you have people under you, then at least try to be the kind of person who's not repeating the mistakes that you've seen. Just try to be better bosses. That's I think that's one thing that we can do. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म है.